اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشخانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست منظور کر لی ہے۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے مختصر زبانی فیصلہ سنایا اور کہا کہ حکم نامہ تحریر ہو رہا ہے۔ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تحریری فیصلے میں سزا معطلی کی وجوہات بھی بتائی جائیں گی۔ بجلی کے بلوں میں اضافے اور ٹیکس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست شہری شیخ محمد لطیف نے دائر کی اور چیئرمین وابٹا اور چیئرمین نیپرا کو فریق بنایا گیا۔ شیخ محمد لطیف کی جانب سے درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ بجلی کے بلوں میں مختلف نوعیت کے ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں۔ ایف سی سرچارج، جی ایس ٹی، ٹی وی فیس اور الیکٹریسٹی ڈیوٹی سمیت ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کینین صدر کی دعوت پر ستمبر کے پہلے ہفتے میں کینیا کا دورہ کریں گے۔ نگراں کابینہ کے ارکان مشی اور مومن خصوصی بھی 3 روزہ دورے پر نگراں وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ حکام کے مطابق کینیا اور پاکستان کے تعلقات، تجارتی امور اور دو طرفہ تعاون پر تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا، جبکہ تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع، معاہدوں اور یادداشتوں پر بھی دستخط کیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت نے توشخانہ کیس میں لاہور ہائی کورٹ احکامات کے خلاف دائر اپیل واپس لے لی۔ سپریم کورٹ میں توشخانہ تحائف کی نیلامی سے متعلق کیس کی سماعت پر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ توشخانہ نئے رولز کی روشنی میں اپیل واپس لینا چاہتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ رولز کی بات کریں گے تو سوال اٹھائیں گے، کس قانون کے تحت قواعد بنائے ہیں، قواعد کی بات رہنے دیں، اپیل واپس لے رہے ہیں تو ایسے ہی لیں۔ آئندہ ماہ غریب عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرا جانے کا امکان۔ 16 اگست 2023 سے ڈالر کی قدر میں اضافے سے شرح مبادلے میں 12 روپے کا فرق پڑا ہے اور اس کے ساتھ ہی بین الاقوامی منڈیوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ توقع ہے کہ اوگرا 1 ستمبر سے شروع ہونے والے آئندہ 15 دن کے لیے پیٹرول کے نرخ میں 12 روپے فی لیٹر اور ڈیزل میں 14.83 روپے فی لیٹر اضافہ تجویز کرے گی۔ اور راولپنڈی کے علاقے ٹی چوک پرانے ٹول پلازا کے قریب ٹریلر اور وین میں حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد جان کی بازی سے ہار گئے، جبکہ 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں 4 مرد اور 1 خاتون، جبکہ زخمیوں میں 4 خواتین اور 2 مرد شامل ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسین حیدر اور میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز مگر اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بڑے فیصلے سے متعلق آگاہ کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشخانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست کو منظور کر لیا ہے۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت پر رہا کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے مختصر زبانی فیصلہ سنایا اور کہا کہ حکم نامہ تحریر ہو رہا ہے۔ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ تحریری فیصلے میں سزا معطلی کی وجوہات بھی بتائی جائیں گی۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشخانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ سابق وزیر اعظم کی جانب سے
توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کی سزا کے خلاف درخواست پر سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس طاہر طارق جہانگیری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی تھی۔ اس سے قبل ہی توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر فیصلے سے قبل اہم پیش رفت بھی ہوئی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کسی بھی کیس میں گرفتاری سے روکنے کی درخواست پر بھی دائر کیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے وکیل سلمان صفدر کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، جس میں ایف آئی، نیب اور پولیس کو گرفتاری سے روکنے کی استدعا کی گئی ہے۔ جی بالکل، چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے آج ہی درخواست پر سماعت کی استدعا بھی کی ہے۔ 5 اگست کو اسلام آباد کی سیشن عدالت کے جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ توشہ خانہ کیس میں سزا سنائے جانے کے بعد اسی دن پی ٹی آئی کے چیئرمین کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس وقت وہ اٹک جیل میں قید ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم ترین خبر کے حوالے سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست منظور کر لی ہے۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے مختصر فیصلہ سنایا اور کہا کہ حکم نامہ تحریر ہو رہا ہے۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ تحریری فیصلے میں سزا معطلی کی وجوہات بتائی جائیں گی۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر فری کین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ سابق وزیر اعظم کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کی سزا کے خلاف درخواست پر سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی تھی۔ اس سے قبل توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر فیصلے سے قبل اہم پیش رفت ہوئی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کسی بھی کیس میں گرفتاری سے روکنے کی درخواست بھی دائر کر رکھی ہے۔ ناظرین، وہیں دوسری جانب سابق وزیر اعظم اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کو رہا کرنے پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف نے اپنے بیان میں لاڈلے کی سزا معطل ہوئی ہے، کہا کہ ختم نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس کا گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کا پیغام اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ گیا۔ فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو پتا ہو چکا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا، تو یہ نظام عدل کے لیے لمحہ فخریہ ہونا چاہیے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ سے واضح پیغام مل جائے تو ماتحت عدالت یہ نہ کرے تو اور کیا کرے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کی رہائی کے موقع پر اپنے بڑے بھائی سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے بانی نواز شریف سے متعلق بھی بات کی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ مانیٹرنگ جج لگاتار لاڈلے کو بچانے کے لیے خود چیف جسٹس مانیٹرنگ جج نظام عدل کا یہ کردار تاریخ پر بن گئے سے اباب میں بھی لکھا جائے گا۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو، سابق وزیر اعظم اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کو رہا کرنے پر رد عمل کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے اپنے بیان میں لاڈلے کی سزا معطل ہوئی ہے کہا کہ ختم تو نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس کا گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کا پیغام اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ گیا۔ فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو پتا ہو فیصلہ کیا ہوگا، تو یہ نظام عدل کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بجلی کے بلوں میں اضافے اور ٹیکس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست شہری شیخ محمد لطیف نے دائر کی اور چیئرمین بابٹا اور چیئرمین نیپرا کو فریق بنایا گیا۔ شیخ محمد لطیف کی جانب سے درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ بجلی کے بلوں میں مختلف نوعیت کے ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں۔ ایف سی سرچارج، جی ایس ٹی، جے بی ایس اور الیکٹریسٹی ڈیوٹی سمیت ٹیکسز وصول کیے جاتے ہیں۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ اعلیٰ عدالتی بجلی کے مختلف ٹیکسوں کی وصولی غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ بجلی بلوں میں 1 یونٹ کے فرق پر ہزاروں روپے اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جی بالکل ناظرین، درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ بجلی بلوں میں بھاری اضافے نے عوام کی زندگی اچیرن بنا دی ہے۔ عدالت بجلی کے بلوں میں ٹیکسوں کی وصولی کا لدم قرار دے۔ دوسری جانب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت نگران وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہو گیا۔ اجلاس میں ملک کی معاشی صورتحال، بجلی کے بلوں پر عوامی احتجاج اور پاور ڈویژن کے فارمولے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اجلاس کے دوران پاور ڈویژن کی جانب سے مفت بجلی کے یونٹس کی فراہمی اور مانیٹائزیشن پر بریفنگ دی گئی۔ پاور ڈویژن کی جانب سے ارکان کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ گریڈ 17 سے 21 کے 15,971 ملازمین ماہانہ 70 لاکھ یونٹس مفت بجلی استعمال کرتے ہیں۔
जी बिल्कुल, ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन 33 करोड़ यूनिट माहाना मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि 1,73,200 सरकारी मुलाजमीन सालाना 10 अरब रुपए की मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। ब्रीफिंग में बताया गया है कि ग्रेड 17 तक 21 के मुलाजमीन सालाना 1 अरब 25 करोड़, जबकि ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन माहाना 76 करोड़ 43 लाख रुपए की मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। पावर डिवीजन के दौरान ब्रीफिंग का कहना था कि ग्रेड 17 से 21 तक मुलाजमीन की मुफ्त बिजली खत्म करने से माहाना 19 करोड़ रुपए की बचत होगी। मुफ्त बिजली यूनिट खत्म करके मखसूस रकम तनख्वाह में शामिल करने से यह फर्क और कम हो जाएगा। आपको बताएं कि एक तरफ जहां मुल्क भर में महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज जारी है, तो वहीं दूसरी जानिब बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां भी कर ली गई हैं। बिजली मजीद 2 रुपए 7 पैसे फी यूनिट महंगी होने का वाज़ इम्कान है। बिजली के नर्ख में मजीद इजाफे के लिए CPPA ने दरख्वास्त दायर कर दी है, जिस पर कल समाअत होगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जुलाई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफे की भी दरख्वास्त दी है। जी बिल्कुल नाज़रीन, नेपरा समाअत के बाद बिजली की कीमत में इजाफे से मुतालिक फैसला करेगी। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर मजीद 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि डिशकोट में महंगाई और बिजली का बिल से सताए हुए 2 बच्चों के बाप ने जिंदगी को खात्मा कर लिया है। 2 बच्चों के बाप ने घर का बिजली का बिल 40,000 आने पर घर में मामूली तल्ख कलामी हुई, जिस पर 2 बच्चों के बाप ने खुद को 30 बोर पिस्टल से फायर मार लिया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि अफसोसनाक खबर है। डिशकोट में महंगाई और बिजली का बिल से सताए हुए 2 बच्चों के बाप ने जिंदगी का खात्मा कर लिया। 2 बच्चों के बाप के घर का बिजली का बिल 40,000 आने पर घर में मामूली तल्ख कलामी हुई, जिस पर 2 बच्चों के बाप ने खुद को पिस्टल से फायर मार दिया। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक बिजली के इजाफी बिल जो गरीब पैसे ना होने पर दिल बर्दाश्ता होकर फायर मार कर खुदकुशी कर बैठा। कबूला शरीफ में अंजुमन ताजरान कबूला की तरफ से महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। महंगाई मुखालिफ एहतजाज में शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुल्क भर की तरह महंगाई से तंग आवाम ने हुक्मरानों की अयाशी पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि एहतजाज में अपने बिल बिजली जला दिए। अंजुमन ताजरान कबूला के सदर चौधरी जाहिद रशीद गुजर ने कहा कि आए दिन बिजली के बिल के साथ रोजमर्रा की तमाम अशिया और फरोनोश में भी इजाफा होता जा रहा है। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ मंशनाबाद की अंजुमन ताजरान ने कमर कसली और शहरियों का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। शहरियों और समाजी तंजीमों ने इस इजलास में भरपूर शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से। जी शहजाद, क्या तफसीलात हैं? मंशनाबाद में जो इजाफी बिजली के बिलों के खिलाफ अंजुमन ताजरान की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, तो हमारे साथ अंजुमन ताजरान के जो शुरका हैं पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं वो भी मौजूद हैं। तो सिटी सदर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो हुकूमत वक्त को महंगाई के हवाले से क्या पैगाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में वापडा ने इतने टैक्स लगा दिए हैं कि गरीब का जीना अब हराम हो गया है। वो बिला वजह को परेशान कर रहे हैं। अशराफिया को जो फ्री बिजली दी जा रही है उसका टैक्स और वो गरीब से लिया जा रहा है। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं, अनवारुल्लाह काकड़ साहब से अपील करते हैं कि टैक्स को फौरी ख़त्म किया जाए और गरीब को रिलीफ दिया जाए ताकि गरीब का जीना आराम ना हो। ये थे जी अंजुमन ताजरान के लोग, जिनका कहना है कि हुकूमत वक्त से फिर फौर बिजली का जो महंगाई का जो जिन बोतल से बाहर आया हुआ है ये नोटिस वापस लिया जाए और अशराफिया की जो बिजली है वो फ्री बंद की जाए ताकि गरीब आदमी का जो बोझ है वो कम किया जा सके। और हुकूमत को इन्होंने अल्टीमेटम भी दे दी। तांदेली हवाला से खबर आपको दे जाए हम फोटोग्राफ एसोसिएशन की जानिब से इमाम बारका चौंक तांदेली हवाले में बिजली बिलों में टैक्सेस की भरमार और रेट्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में सदर फोटोग्राफ एसोसिएशन मोहम्मद इकबाल, सरपरस्त मोहम्मद रफीक और दीगर अहदेदारान और मेम्बरान सदर ताजरान शहजाद बख्तावर, उमर गुजर, मलिक फारूक, शेख नन्हा ने शिरकत की। एहतजाज में बिजली बिलों के टैक्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मोहम्मद रफीक ने कहा कि टैक्सेस से भरपूर बिजली किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी।
जी बिल्कुल, हुकूमत ने अपनी सहूलियात के लिए अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। छोटे कारोबार हैं, चूल्हा नहीं चलता, बिल कैसे अदा करें? किसी भी हुकूमत ने अवाम दोस्त पॉलिसी नहीं बनाई। हुकूमत को समझ नहीं आ रही तो हमसाया ममालिक से ही सीख लें। हुकूमत अब अवाम को खुदकुशियों पर मशगूल कर रही है। एहतजाजी शुरा ने कहा कि हुकूमत हमसाया दोस्त मुल्क चीन की तरह बिजली सस्ती मुहैया करने के इक़दाम करे। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद बिलों में बेचा टैक्सों की भरमार के खिलाफ जहां मुल्क भर में शहरी एहतजाज कर रहे हैं, वहीं चिन्योट के ख्वाजा सरा भी सड़कों पर निकल आए। ख्वाजा सरा कहते हैं कि हम फनकार हैं, 1 से 2 हजार रुपए रोजाना उजरत बनती है, घरों के चूल्हे जलाएं या बिल अदा करें। जी बिल्कुल, उनका मजीद कहना था कि अगर हमने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी तो किसी भी हुक्मरान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सड़कें, रोड्स ब्लॉक तो दफातर में दाखिला बंद हो जाएगा। ख्वाजा सराओं ने तमाम सियासी जमातों और मौजूदा निगरान हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर आप मुल्क नहीं चला सकते तो उन्हें खिदमत का मौका दें। वो आवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश को बजा लाएंगे। तो वहीं दूसरी जानिब अहमदपुर शर्किया में भी महंगी बिजली के खिलाफ अंजुमन ताजरान की शटर डाउन हड़ताल जारी है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए बिजली बिल नजर आतिश कर दिए। बिजली महंगी, हाय हाय मर गया गरीब, हाय हाय की फलक शुगाफ नारे। शहरियों का कहना था कि महंगाई बिजली नामंजूर है, बिजली बिलों में इजाफा फौरी तौर पर वापस लिया जाए। एहतजाज में छोटे बड़े ताजरों और शहरियों की भरपूर तादाद ने शिरकत की। अहमदपुर शर्किया में महंगी बिजली के खिलाफ अंजुमन ताजरान की शटर डाउन हड़ताल जारी है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए बिजली बिल फाड़ कर जला दिए और बिजली महंगी, हाय हाय मर गया गरीब, हाय हाय के फलक शुगाफ नारों ने आसमां को हिला दिया। शहरियों का कहना था कि महंगी बिजली नामंजूर है, बिजली बिलों में इजाफा फौरी तौर पर वापस लिया जाए। एहतजाज में छोटे बड़े ताजरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सराय आलमगीर में भी अंजुमन ताजरान और जमात इस्लामी का महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली खंडा चौक से शुरू होकर जीटी रोड पर खत्म हुई। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत बिजली की कीमत फौरी तौर पर कम करे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि कीमत को 1 साल पहले की सतह पर लाया जाए। शहरियों ने एहतजाजन बिल जलाए और फाड़ दिए। बिल जमा न करवाने का ऐलान कर दिया। शहर में एहतजाजन अलामती शटर डाउन भी किया गया। मुल्क भर की तरह तहसील जतोई में बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्स और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अंजुमन ताजरान भी सरापा एहतजाज है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासीन से। जी मोहम्मद यासीन, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह तहसील जतोई में भी अंजुमन ताजरान जो है बिजली के बिल में जो जुल्माना टैक्स लगाए गए हैं, आज इस पे सरापा एहतजाज है। मेरे साथ अंजुमन ताजरान मौजूद है, मजीद इस उनसे जानते हैं इस बारे में वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मियां मोहम्मद फयाज नसीम, मरकज़ी सदर अंजुमन ताजरान जतोई और मेंबर जिली अमन कमेटी मुजफ्फरगढ़। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जालिमाना टैक्स जो है बिजली के बिलों पर ख़त्म किए जाएं, वरना हमारा ये एहतजाज उस वक्त तक रहेगा, शटर डाउन हड़ताल उस वक्त तक रहेगी जब तक ये जालिमाना टैक्स बिलों पर ख़त्म नहीं होता। ये तमाम अवाम जतोई की पूरा शराबा एहतजाज है। अंजुमन ताजरान शटर डाउन हड़ताल किए हुए है, पूरा शहर शराबा एहतजाज है। मेहरबानी करके ये बिजली के जो है जालिमाना टैक्स खत्म किए जाए, वरना हम वजीर आजम हाउस का घेराव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, जैसा कि आपने अंजुमन ताजरान की जुबानी सुनी, उनका कहना है कि ये जुल्माना जो टैक्स लगाए गए हैं ये बिल्कुल खत्म किए जाए, नहीं तो हम इसका एहतजाज का। महंगी बिजली के खिलाफ मजदूर तबका भी सरापा एहतजाज है। महंगाई की सताए सब्जी मंडी के मजदूरों का बिजली के बिलों और बेचा टैक्सेस पर सब्र का पैमाना तबरेज हो गया।
काम छोड़कर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। रिपोर्ट मियां आमिर कुरैशी, कोहिनूर टीवी बिहाड़ी। महंगाई के सताए सब्जी मंडी के मजदूर ने बिजली के बिलों बेजा टैक्सेस पर काम छोड़कर बिल में हाथ उठाकर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। सब्जी मंडी के मजदूर अपना काम छोड़कर एहतजाज में शामिल किए गए। सब्जी मंडी के मजदूरों का कहना है कि हुकूमत फौरी बिलों में टैक्सेस वापस ले। अवाम का सब्र पैमाना लबरेज हो चुका है। अवाम महंगाई और बेरोजगारी से तंग है और खुदकुशियां करने पर मजबूर है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नोटिस ले, गरीब से जीने का हक न छीना जाए। एहतजाजी मजदूरों का कहना है कि लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले मुफ्त की बिजली समेत दीगर तमाम मुराद खत्म की जाएं। 500 और 700 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर बिल अदा करे और लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले मुफ्त बिजली चलाएं। कहाँ का इंसाफ है? उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ अंजुमन हकूक ताजरान की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अंजुमन हकूक ताजरान ने बिजली के बिलों को जलाकर हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली बिलों में लगाए गए जालिमाना टैक्सेस को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। मुजाहरे में शरीक शहरियों ने मुख्तलिफ नारों से दर्ज प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहरीन ने कहा कि अगर जालिमाना टैक्स को खत्म न किया गया और गरीब के बच्चों को मरने से न बचाया गया तो इस एहतजाज को जारी करेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, अंजुमन हकूक ताजरान का कहना था कि हमारे मुतालबात को तस्लीम किया जाए और खुदकुशी करने से बचाया जाए। शहरियों ने कहा कि अवाम दुश्मन पॉलिसियां बनानी खत्म होनी चाहिए। लोगों में महंगाई और बेरोजगारी की वजह से पहले ही जीने की सख्त बाकी नहीं रही। दूसरी जानिब बिजली के बिलों ने कसर निकाल दी है। हुकूमत को चाहिए कि बिजली के बिलों में लगाए गए टैक्सेस को खत्म करके और बिजली के रेट कम करके मुल्क में बसने वाले गरीब को रिलीफ दे ताकि खुदकुशी पर मजबूर खुशहाल जिंदगी गुजार सके। नाज़रीन, आपको बताएं कि बिजली के महंगे बिल दहलाए दिल। जून में बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ सखर स्मॉल ट्रेडर्स की जानिब से घंटा घर पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासिर अंसारी से। जी यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, बिजली के महंगे बिल दिला रहे हैं दिल सकर में। जून के जहाँ जहाँ महंगे बिल आए वहाँ पर सकर के शहरी बाहर निकल आए। सकर की सियासी हमारी तंजीमों की जानिब से इस वक्त सकर में बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। सराफा बाजार यूनियन स्मॉल ट्रेडर की जानिब से सराफा बाजार से घंटा घर तक एहतजाजी रैली निकाली गई है। हमारे साथ हाजी जावेद मेमन साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, ये वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं बिजली के बिल कम नहीं हो सकते, एहतजाज से हमारी मजबूरी क्या है? देखें, इस वक्त ये बिजली के बिलों में 50 किस्म के टैक्सेस हैं। हम कहते हैं वो ख़त्म होने चाहिए, जो कि एक अनलीगल हैं, गलत हैं। और यूनिट का रेट एक मुकर्रर किया जाए। ये आए दिन रेट बढ़ा देते हैं अपनी मर्जी पे और 50 किस्म के टैक्सेसों में इजाफा कर देते हैं। ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। और महंगाई आए दिन आटा, चीनी, चावल, दालें, ये इतनी महंगाई कर दी है। और इधर हुक्मरान अपनी अय्याशियों में पूरे हैं, उनको रेट मुफ्त में मिल रही है बिजली। खुदारा इस पे अगर कंट्रोल ना हुआ तो इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान 2 तारीख को बंद होगा। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। उनका यही कहना है कि अगर हुकूमत ने बिजली के फौरी बिल वापस नहीं लिए तो भरपूर एहतजाज तरीके से चलाई जाएगी और यहाँ तक कि 2 तारीख को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान भी किया जाएगा। पतोकी का नवाही इलाका हुसैन खान वाला में वाक़ एहलकार बिल तकसीम करते हुए लोगों के गुस्से से डरकर बिजली के बिल से घरों में देने के बजाय रोड पर ही फेंक कर फरार हो गया। रोड पर बिखरे बिल, लोग अपने अपने बिल्स ढूंढते रहे और इजाफी बिल देखकर इलाका मकीनों का मीटर घूम गया। लोगों ने बिल्स जला दिए और शदीद एहतजाज किया। जी बिल्कुल, मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा वापडा सब डिवीजन बिजली शोरों का सहूलत कार बन चुका है। उनका मजीद कहना था कि जब तक हुकूमत बिलों में किया गया इजाफा वापस नहीं लेती और बिजली शोरों के खिलाफ क्रैक डाउन नहीं करती तब तक वो बिल अदा नहीं करेंगे। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि तांदियावाला फेस्को दफातर में पुलिस सिक्योरिटी तैनात कर दी गई। पुलिस सिक्योरिटी बिजली बिलों के खिलाफ अवामी एहतजाज की वजह से तैनात की गई। सिटी सब डिवीजन फेस्को में 4 पुलिस एहलकार तैनात किए गए, जबकि रूरल, रहमेशाह और मामू कांचन डिवीजन में भी पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। SDO कमर समान ने कहा कि चीफ फेस्को और चेयरमैन फेस्को की हिदायत पर सब डिवीजन में पुलिस तैनात की गई है। एहतजाज में अवामी रद्दअमल के पेश नज़र सब डिवीजन में हिफाजती तौर पर सिक्योरिटी मौजूद है। एहतजाजों में फैसले इमलाक और अमले को नुकसान से महफूज करने के लिए पुलिस भी तैनात है। जब तक हालात बेहतर नहीं होते तब तक सब डिवीजन में पुलिस तैनात ही रहेगी।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ केनियन सदर की दावत पर सितंबर के पहले हफ्ते में कीनिया का दौरा करेंगे। निगरान काबीना के अरकान मुशीर और मुआवन खसूसी भी 3 रोज़ा दौरे पर निगरान वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। हुकाम के मुताबिक कीनिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात, तजारती अमूर और दो तरफ़ा ताउन पर भी ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना केस में लाहौर हाई कोर्ट अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना समात पर डेप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तोशाखाना नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। अदालत में जस्टिस सतर मिनल्ला ने कहा कि रूल्स पर ना जाएं, तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है। जस्टिस सतर मिनल्ला ने कहा कि रूल्स की बात करेंगे तो सवाल उठाएंगे, किस कानून के तहत कवायद बनाए हैं, कवायद की बात रहने दें, अपील वापस ले रहे हैं तो ऐसे ही में। रावलपिंडी से अफसोसनाक खबर आपको दें। रावलपिंडी के इलाके टी चौक पुराने टूल प्लाजा के करीब ट्रेलर और वैन में खौफनाक तसादुम के हादसे में 5 अफराद जान से चले गए हैं, जबकि 6 की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को तिब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि हादसे में जान बहक होने वालों में 4 मर्द और 1 खातून, जबकि जख्मियों में 4 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, अफसोसनाक खबर है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि रावलपिंडी के इलाके टी चौक पुराने टूल प्लाजा के करीब ट्रेलर और वैन में हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 5 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 6 अफराद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि हादसे में जान बहक होने वालों में 4 मर्द और 1 खातून, जबकि जख्मियों में 4 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि आइंदा माह गरीब आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराए जाने का इम्कान है। 16 अगस्त 2023 से डॉलर की कदर में इजाफे से शरह मुबादला में 12 रुपए का फर्क पड़ा है और उसके साथ ही बैनुल-अक़वामी मंडियों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ रही हैं। तवक्का है कि ओगरा 1 सितंबर से शुरू होने वाले आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोल के नर्ख में 12 रुपए फी लीटर और डीजल में 14.83 रुपए फी लीटर इजाफा तजवीज़ करेगी। IMF की शराइत पूरी ना हुई तो अरबों डॉलर्स कर्जा खतरे में पड़ जाएगा, जिससे आवाम को महंगाई के तूफान का सामना करना पड़ेगा और उनकी जिंदगियां मजीद अजीरन हो जाएंगी। वजारत तवानाई के एक सीनियर अफसर के मुताबिक इस वक्त अफराद का तनासुब 28% है। ताहम निगरान हुकूमत बिजली के ज़ायद बिलों पर मुल्क गिर शदीद रद्द-ए-अमल और एहतजाज के बायस दबाव का भी शिकार है। 15 अगस्त को पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए 50 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफा किया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएंगी। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर होगी, जबकि हाई डीजल की नई कीमत 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर पर ट्रेड करेगी। और सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद ने साइफर केस में साबिक वफाकी वजीर असद उमर की 14 सितंबर तक जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसी कर दी है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने असद उमर को FIA के सामने शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म दिया। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वकील सफाई बाबर अवान ने अदालत को बताया कि असद उमर 2 बार FIA के सामने शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। साइफर केस में गिरफ्तार PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को 2 दिन मजीद जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। अब कुछ बात सैलाबी सूरत हाल की, तो दरिया सतलुज के सैलाबी रैले से जलालपुर का हिफाजती बंद टूट गया, जिससे सैकड़ों एकड़ रकबा सेरियाब आ गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दरिया सतलुज के सैलाबी रैले में फंसे अफराद को 14 कश्तियों के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है। सैलाबी रैले ने अहमदपुर शर्किया के दरियाई बेल्ट में तबाही मचा दी, जिससे हजारों एकड़ ज़रई अराजी पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई, जबकि बहावलनगर में दर्जनों आबादियां पानी की लपेट में आ गई हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान PGMA का कहना है कि दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल भी बरकरार है। गंडा सिंह सुलेमान की और हेड इस्लाम के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसिक है। तर्जुमान के मुताबिक हेड सलेमान के मकाम पर पानी की आमद 98,878 और अखराज
85,014 क्यूसिक है, जबकि हेड स्पान के मकाम पर पानी का बहाव 82,916 क्यूसिक हो चुका है। तर्जुमान ने बताया कि मेलसी साइफन के मकाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि पंजाब के दीगर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। तर्जुमान PTM के मुताबिक मानसून बारिशें 4 सितंबर तक जारी रहने के इम्कानात हैं और तमाम बड़े दरियाओं के बलाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें भी मुतवक्के हैं। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए पेश हुई। बुशरा बीबी बुकला लतीफ़ खोसा और इंतजार पंजोथा के हमरा अदालत में पेश हुई, जबकि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रुखसत पर उनकी बाइस ड्यूटी जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने अदा की। बाज़ एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की 5 लाख के जमानती मुचलकों के एवज 12 सितंबर तक अबूरी जमानत को मंजूर कर लिया है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने ड्रोन के जरिए मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए मनशियात स्मगल करने वाले को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। इंटेलिजेंस इतला पर DHA लाहौर के करीब एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया। कार सवार मुलजिम ने गाड़ी रोकने के बजाय मौके से भगा दी। गाड़ी के ताकुब के दौरान मुलजिम ने गाड़ी फुटपाथ से टकरा दी। कार सवार मुलजिम लाहौर के रहायशी फयाज हुसैन को मौका पर गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी लेने पर गाड़ी से 10 किलोग्राम हेरोइन और ड्रोन बरामद कर लिया गया। 1 किलोग्राम हेरोइन का एक पैकेट ड्रोन के साथ मुंसलिक था। गिरफ्तार मुलजिम ANF को दीगर मुकदमात में भी मतलूब था। दौरान तफ्तीश गिरफ्तार मुलजिम ने ड्रोन के जरिए मनशियात स्मगलिंग का एतराफ़ किया और गिरोह के दीगर अरकान की गिरफ्तारी के लिए मुलजिम से मजीद तहकीकात जारी है। और पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 67 नए मरीज रिपोर्ट हुए। इस हवाले से सूबाई सेक्रेटरी सेहत अली जान खान ने कहा कि लाहौर में डेंगू के 28, रावलपिंडी में 15 और फैसलाबाद में 6 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सेक्रेटरी सेहत ने बताया कि मुल्तान और शेखुपुरा में डेंगू के 3, जबकि बहावल नगर में 2, गुजरावाला, ननकाना गुजरात और बहावलपुर में 1 केस रिपोर्ट हुआ है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि टोबा टेक्सिंग, नारोवाल, मुजफ्फरगढ़, चकवाल, रहीम यार खान और खुशाब में डेंगू का 1 मरीज रिपोर्ट हुआ है। पंजाब भर में रवा साल अब तक डेंगू के 1042 कंफर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। अली जान खान का कहना है कि पंजाब के अस्पतालों में डेंगू के 61 मरीज जेर इलाज हैं। रवा साल पंजाब का कोई शहरी डेंगू की वजह से जाँ बहक नहीं हुआ। दूसरी जानिब डेंगू एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि लाहौर के निजी अस्पताल में 50 साला इलियास डेंगू से जाँ बहक नहीं हुआ। क्लिनिकल ऑडिट से साबित हुआ है कि इलियास की वफात मुतादिद एज़ा नाकारा होने की वजह से हुई है। और अब कुछ बात डॉलर की, तो इंटरबैंक में डॉलर कल के मुकाबले में 26 पैसे महंगा होकर 302.25 रुपए का हो गया है। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 301.99 रुपए पर बंद हुआ था। गुज़िश्ता रोज मुल्क में सोने की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई थी। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में फी तोला सोने की कीमत में 1500 रुपए कमी हुई थी। मुल्क में फी तोला सोने का भाव 2,33,000 रुपए था। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके औरंगी टाउन से डकैती और मोबाइल ट्रैपिंग में मुलविस गिरोह के 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान शहरियों से समेत मुतादिद वारदातों में भी मुलविस थे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राजा बलोच।
पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची किला के औरंगी टाउन से डकैती और मोबाइल टेम्परिंग में मुलव्वस गिरोह के 2 मुलजमान जीशान और सगीर को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक 18 अगस्त 2023 को मुलजम जीशान ने अपने एक साथी के हमरा औरंगी टाउन में एक मोटरसाइकिल सवार शहरी से गन पॉइंट पर मोबाइल फोन और नकदी छीना हुआ मोबाइल फोन मुलजम ने अपने साथी मुलजम सगीर को फरोख्त किया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, जिसमें मुलजमान को बआसानी पहचाना जा सकता है। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजम जीशान ने औरंगी टाउन, साइड टाउन और गिरदोनवा के इलाकों में डकैती और स्नैचिंग की 50 से जायद वारदातों में 150 से जायद मोबाइल फोन्स और 1 लाख रुपए से जायद नकदी लूटने का एतराफ किया है, जबकि मुलजम सगीर ने 80 से जायद मोबाइल फोन्स की टेम्परिंग का एतराफ किया है। मुलजमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर। नाज़रीन, आपको बताएं कि जद्दा के एक मुकामी होटल में शहर मुल्तान के सबसे बेहतरीन तामीराती मंसूबा सिरीन टावर की जद्दा में पहली तारुफी तकरीब से खिताब करते हुए सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की मुशीरा मारूफ सऊदी बिजनेस वुमन नौशीन वसीम ने कहा कि सिरीन टावर DHA मुल्तान में एक बेहतरीन मंसूबा है। तकरीब में पाकिस्तानियों और सऊदी कम्युनिटी के अकाबरीन और सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नौशीन वसीम ने मज़ीद कहा कि मुल्तान एक बहुत खूबसूरत शहर है और वहाँ बहुत मौक़े हैं और मुझे यकीन है कि सिरीन टावर भी एक मुकम्मल और खूबसूरत प्रोडक्ट होगा। इसके अलावा पाकिस्तान जर्नलिस्ट्स और फॉर्म से चेयरमैन उमीर मोहम्मद खान, पाक ओवरसीज़ मीडिया फॉर्म से सरपरस्त आला सैयद मुसरत खलील और हाल ही में कायम होने वाले फॉर्म यूनाइटेड जर्नलिस्ट फॉर्म से जहांगीर खान ने भी खिताब किया। सिरीन टावर प्रोजेक्ट की तारीफ करते हुए मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश की गई। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर सिरीन टावर के सऊद खान ने शुरा को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि शहर मुल्तान में ये टावर 35 फ्लोर पर मुश्तमिल है। उन्होंने मनसूबे की मजीद तफसीलात स्क्रीन पर दिखाकर तमाम मेहमानों की तशरीफ आवरी का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि जद्दा के एक मुकामी होटल में शहर मुल्तान के सबसे बेहतरीन तामीराती मंसूबा सिरीन टावर की जद्दा में पहली तारुफी तकरीब से खिताब करते हुए सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की मुशीरा मारूफ सऊदी बिजनेस वुमन नौशीन वसीम ने कहा कि सिरीन टावर DHA मुल्तान में एक बेहतरीन मंसूबा है। तकरीब में पाकिस्तानी और सऊदी कम्युनिटी के अकाबरीन और सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नौशीन वसीम ने मजीद कहा कि मुल्तान एक बहुत खूबसूरत शहर है और वहाँ बहुत मौके मौजूद हैं और मुझे यकीन है कि सिरीन टावर और मुझे खूबसूरत प्रोडक्ट होगा। उसके अलावा पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम से चेयरमैन अमीर मोहम्मद खान, पाक ओवरसीज मीडिया फोरम से सरपरस्त आला सैयद मुसरत खलील और हाल ही में कायम होने वाले फोरम यूनाइटेड जर्नलिस्ट फोरम से जहांगीर खान ने भी खिताब किया। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में जिन्नत एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जानिब से पाक सऊद के नाम से एक इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसकी शानदार कामयाबी पर होटल के साडियोरा की जानिब से पाकिस्तान से आए हुए स्टार्स सेड रैपर और शहबाज खान साथ पूरी टीम के एजाज में एक प्रोग्राम मीट टी एंड ग्रेट का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सादत मोहम्मद यासीन को हासिल हुई। मेज़बानी के फराइज बैंकेट मैनेजर लीना खान ने अदा किए। जी बिल्कुल, कैसा जोरा होटल कॉर्पोरेशन डायरेक्टर मोहम्मद अनीस ने जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के मुशीर नौशीन वसीम को इवेंट की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और उनको स्टेज पर आने की दावत दी। मिसेस नौशीन वसीम ने कहा कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी पैदाइश कराची की है, बेशक मैं सऊदी हूँ लेकिन पहले तो पाकिस्तानी हूँ। मेरी हमेशा से ही कोशिश रहती है कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर करूं। इसलिए मैं इस साल कंपनी के पाकिस्तान गई और उनसे कहा कि अगस्त का महीना हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, इसलिए आप जद्दा से पाकिस्तान पैसे ट्रांसफर की फीस सिर्फ 6 रियाल कर दी और ऐसा ही हुआ, जिससे पाकिस्तानियों ने बहुत फायदा उठाया। और फिर मैंने अपने पाकिस्तानियों के लिए खास तौर से जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी से इजाजत ली और ये पाक सऊदी इवेंट करवाया, जिसमें हमारे पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर नूश मसूद का रात के थाना गुलबर्ग का दौरा। डॉक्टर नूश मसूद ने हवालात, रिकॉर्ड रूम और पोलकॉम ऑपरेटर्स का रिकॉर्ड चेक किया। रिकॉर्ड की बरवक्त तकमील न करने और सुस्ती बरतने पर मुहर्रर इन्वेस्टिगेशन की सरजनिश की। डॉक्टर नूश मसूद ने रोजनामचा चेक किया और तफ्तीशी अफसरान की थाना में
अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। जी बिल्कुल, ASP गुलबर्ग ऑपरेशंस और DSP गुलबर्ग इन्वेस्टिगेशन को अफसरान की थाना में मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को थाने का रिकॉर्ड पोल काम के मुताबिक अपडेट रखने की भी सख्त हिदायत की। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और SHO को थाने की सफाई और सिक्योरिटी इंतजाम मजीद बेहतर बनाने की भी हिदायत जारी। SSP इन्वेस्टिगेशन ने रजिस्टर नंबर 13 में नोट भी दर्ज किया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने थाना में आए हुए शहरियों के मसाइल सुने और इनके हल के लिए मौका पर अहकाम जारी किए। लाहौर पुलिस का संगीन जराइम में मुलविस मुल्ज़मान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सरबराह लाहौर पुलिस के संगीन वारदातों के मुकदमात बिला ताखीर दर्ज करने की हिदायत। CCP लाहौर का क्राइम कंट्रोल के लिए सुपरवाइजरी अफसरान को फील्ड में निकलने का हुक्म। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा कि अफसरान खुद पेट्रोलिंग और नाकाजात पर चेकिंग मैकेनिज्म की मॉनिटरिंग करें। हॉटस्पॉट एरियाज में डॉल्फिन और पीरो फोर्स की गश्त को यकीनी बनाया जाए। डकैती और रॉबरी के तमाम मुकदमात का फौरी इंदराज करें। सालिम का हाथ रोकना पुलिस की जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत। लाहौर समेत सूबे के तमाम अजला में मिसाक सेंटर्स कायम कर दिए गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने इस मौका पर कहा कि अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए हर जिला और अक़लियतों की अक्सरियत वाली सब डिविजन्स में मिसाक सेंटर्स फाल हो चुके हैं। सूबे भर में मिसाकी सेंटर्स अक़लियती शहरियों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल का तरजीही बुनियादों पर इज़ाला भी यकीनी बनाया जाएगा। इन मिसाक सेंटर्स में पंजाब पुलिस के मसी और दीगर अक़लियती मुलाज़मीन को बतौर स्टाफ तैनात किया गया है। RPOs, GPOs मिसाक सेंटर्स के पेशावराना मामलात के खुद निगरानी कर रहे हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर ने मजीद ये भी कहा कि मिसाक सेंटर्स अक़लियती शहरियों को पुलिसिंग से मुतल्लिक़ तमाम खदमात और सहूलियत के बगैर किसी परेशानी असरअंदाज में फराहम करेंगे। ये सेंटर्स बैनुल मज़ाहिब हमायगी और पुरअमन मुआशरे की तश्कील में मिसाली किरदार अदा करेंगे। और दूसरी जानिब SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में लाहौर के डिविजनल SPs और सर्कल DSPs की भरपूर तादाद में शिरकत की। डॉक्टर अनूश मसूद ने पेंडिंग और ज़ेर अल्तवा मुकदमात के बारे में डिवीजन्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक की। पेंडिंग रोड्स और चालानी रेशो बेहतर न बनाने पर मुतादिद DSPs से इजहार नाराजगी। जी बिल्कुल, इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए तश्कील टीमों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। अफसरान को अपने मुतल्लिका थानों का रिकॉर्ड पोलकॉम के मुताबिक अपडेट रखने और सफाई के निज़ाम मजीद बेहतर बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। मजीद तफसीलात के मुताबिक SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद ने कहा कि इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई टीमों से रोजाना मीटिंग यकीनी बनाए। शहरियों को मेरिट पर बर वक्त इंसाफ की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। मेहनती अफसरान की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाएगी। वज़ीर इत्तलात व बल्दियात पंजाब आमिर मीर की हिदायत पर ओवर चार्जिंग करने वाले पार्किंग स्टैंडर्ड्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया गया। इस ज़मन में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से तमाम मंजूर शुदा पार्किंग स्टैंडर्ड को मुकर्ररा फीस की पाबंदी करने के अहकामात भी जारी किए जा चुके। वज़ीर बल्दियात आमिर मीर की हिदायत पर लाहौर पार्किंग कंपनी के तमाम पार्किंग स्टेशन के अमले को वार्निंग्स भी जारी कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, पार्किंग की मुकर्ररा फीस से ज्यादा वसूल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक वज़ीर बल्दियात आमिर मीर के मुताबिक पार्किंग स्टेशन के खिलाफ एक्शन का फैसला मुसलसल ओवर चार्जिंग की शिकायत पर किया गया, जिसमें वॉल्ट सिटी लाहौर में वाक़िया हवेली होटल के पार्किंग स्टैंड पर ओवर चार्जिंग की शिकायत क्रैकडाउन का सबब बनी। हवेली होटल की पार्किंग में ओवर चार्ज की तस्दीक के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब लाहौर के ज़िला इंतजामिया ने शाय खुरनोश के होलसेल और परचून कीमतों का तयन कर दिया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक नए जारी करदा निर्खनामे के मुताबिक चावल बासमती होलसेल रेट 305, रिटेल 310 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किया जाएगा। चना बारीक 200 होलसेल रेट पर, जबकि 205 परचून, दाल चना स्पेशल 210 होलसेल और 215 रुपए फी किलोग्राम परचून रेट मुकर्रर है। सरकारी नखनामा के मुताबिक दाल मसूर इम्पोर्टेड 265 होलसेल 270 परचून रेट है।
مونگ دال چھلکے والی 215 ہول سیل اور 220 عام مارکیٹ میں فروخت ہوگی۔ اس کے علاوہ دال ماش دھلی امپورٹنٹ 500 ہول سیل جبکہ 510 پرچون ریٹ پر بھی دستیاب ہوگی۔ اس کے علاوہ 450 پرچون ریٹ کے علاوہ کالا چنا ہول سیل 210 پرچون ریٹ 215 ہے جبکہ باریک 195 ہول سیل پرچون 200 روپے میں فروخت ہوگا۔ سرکاری نقطنامے کے مطابق سفید چنا ہول سیل مارکیٹ میں 315 جبکہ عام مارکیٹ میں 320 روپے فی کلو دستیاب ہے۔ بیسن کی ہول سیل قیمت 210 پرچون ریٹ 215 ہے۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کا کہنا تھا کہ پانی کی بوتلیں، مشروبات اور دیگر کمپنیوں کی پروڈکٹس پرنٹ شدہ قیمتوں پر فروخت کیے جائیں گے۔ زائد قیمتیں وصول کرنے والوں کی اطلاع قیمت پنجاب ایپ پر شکایات درج کروائیں۔ وہیں دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ صوبائی دارالحکومت لاہور میں ڈینگی کے وار جاری ہے۔ لاہور میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے 37 مریض رپورٹ ہوئے۔ علامہ اقبال ٹاؤن 9، کینٹ 7، راوی ٹاؤن میں 6 مریض رپورٹ ہوئے۔ داتا گنج بخش 4، گلبرگ 3، عزیز بھٹی، سمن آباد، شالیمار اور واہگہ ٹاؤن میں 2 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1140 مقامات سے لاروا برآمد کیا گیا۔ ڈی سی لاہور کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز نے سرپرائز دورے کیے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عدنان رشید نے UC 10 کے مختلف گھروں سے ڈینگی سرویلنس سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ روم کولر سے ڈینگی لاروا برآمد ہونے پر وارننگ جاری کر دی۔ متاثرہ گھر اور اطراف میں ڈینگی سپرے کروایا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ عمر مقبول نے UC 97 میں ڈینگی سرگرمیوں کا خود معائنہ کیا۔ پودوں کے گملوں سے لاروہ برآمد کر کے وارننگ نوٹس بھی جاری، ڈینگی سپرے کروایا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ یوسف نے UC 126 اور 127 میں ڈینگی ٹیموں کا معائنہ کیا۔ دوسرے پلان میں 07 اور 10 سے گھروں کا کلسٹر لے کر ٹیموں کی چیکنگ کی گئی۔ ACU ماڈل ٹاؤن نے گزشتہ 10 دنوں میں UC 126 میں کوئی مریض رپورٹ نہ ہونے پر سرپرائز چیکنگ کی۔ دوسری جانب پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کا انفورسمنٹ ونگ انسانی خدمت میں بھی پیش ہے۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے انفورسمنٹ ونگ کے انسپیکٹر رانا ذیشان اور مزمل یاسین نے دوران ڈیوٹی وحدت روڈ پر ملنے والے گمشدہ بچے کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا۔ ٹرانسپورٹ انسپیکٹر رانا ذیشان اور مزمل یاسین وحدت روڈ پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے کہ 10 سالہ بچہ جس نے اپنا نام شمیر ولد امداد بتایا 4 گھنٹے اس کے والدین کو تلاش کیا لیکن وہ نہ مل سکے۔ بچے کو تھانہ وحدت کالونی سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے انفورسمنٹ ونگ کی اس کاوش پر CEO PTC فائق احمد نے شاباش دی۔ خبر شامل کریں کھیل کے میدان سے تو ہنگری کے شہر میں ہونے والی ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ کے جیولن تھرو مقابلے میں سلور میڈل جیتنے والے ارشد ندیم وطن واپس پہنچ گئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر شائقین اور سپورٹس کے نمائندوں نے ارشد ندیم کا والہانہ استقبال کیا۔ ارشد ندیم ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں سلور میڈل جیتنے والے پہلے پاکستانی بن چکے ہیں۔ ان کی بہترین تھرو 87.82 میٹر رہی۔ آدھے میٹر کے فرق سے بھارت کے نیرج چوپڑا نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی ارشد ندیم کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ارشد ندیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے KN نیوز۔